Okay, so welcome everyone. My name is Abhishek Bharti. I'm the GDSC lead here. And आज हम लोग सेशन ले रहे हैं गूगल सोल्यूशन चैलेंज पे। तो आई थिंक अभी तक आपको पता हो गया होगा कि गूगल सोल्यूशन चैलेंज इस बार का एडिशन आ चुका है। सो इस पीपीटी में आज जो हमारा एजेंडा है वो है हम पहले तो डिस्कस करेंगे व्हाट इज सोल्यूशन चैलेंज, उसकी टाइमलाइन, देन उसके प्राइजेस, फिर सबमिशन क्राइटेरिया एंड जो रिसोर्सेज हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं व्हाट इज सोल्यूशन चैलेंज। तो सोल्यूशन चैलेंज जो है बेसिकली सोल्यूशन चैलेंज एवरी ईयर गूगल होस्ट्स code hackathon kind of a thing which is a month long or maybe a month, more than a month, in which people collaborate and form a team of 4 people and provide solutions to alarming global problems. So इसमें जो हम करते हैं गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स के जो सोल्यूशन चैलेंज होता है वो इस बार 2023 में हम लोग जो बेसिकली फोकस करेंगे वो जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं एंड एज उनको प्रेमाइस में रख हम उस पे बनाते हैं अपना जो सोल्यूशन होता है। सो जो हमारे जो एसडीजीज या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उनको जो यूनाइटेड नेशंस था उसने 2015 में एस्टैब्लिश किया था और एक गोल रखा था कि 2030 तक इन 17 सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करना है। सो पहले तो हम देख लेते हैं कि जो 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं वो है क्या क्या। सो जो फर्स्ट गोल है वो है नो पॉवर्टी, सेकंड गोल है ज़ीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवेंथ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, decent and eighth है decent work and economic growth, ninth है industry innovation and infrastructure, 10th है reduced inequalities, 11th है sustainable cities and communities, 12th है responsible consumption and production, 13th है climate action, 14th है life below water, 15th है life on land, 16th है peace, justice and strong institutions, 17th है आपका partnerships for the goals. तो these are the 17 SDGs या sustainable development goals. अब जो आप सोल्यूशन प्रपोज करोगे अपने गूगल सोल्यूशन चैलेंज में वो आप इन फिर 17 पे गोल्स को फोकस में रखते हुए डिजाइन करोगे। आप चाहो तो आप इनके एक या दो को एक साथ कंबाइन करके भी यूज कर सकते हो एंड चाहो तो आप किसी एक पे ज्यादा फोकस करके भी कर सकते हो। सो हम पहले एक वीडियो देख लेते हैं। आई थिंक स्क्रीन विजिबल होगी, कोई एक बार बता दो स्क्रीन विजिबल है तो। ऑडियो आ रही है क्या? My tip is to believe in yourself and most importantly, believe in your team. Even if it's code you haven't experienced, it is important to try first. Collaboration is key. Work on projects together so as to improve your knowledge and skills. Stay innovative, keep thinking, and get a good team, because sometimes that's all that matters. Complex problems can be overwhelming, but breaking them down into small tasks can make them more approachable. Feedback can be tough to hear, but it is important to be open to constructive criticism. Communicate openly and honestly when your teammates. Take care of your local communities. The greatest impact that we have is when we care for the people around us. Everyone has unique strengths and weaknesses, so don't be afraid to lean on each other. Talk to your users directly and discover what they really need. Please recognize each person's strengths and distribute role accordingly. Go for it. Even if you don't know how, just learn as you code. Work on something that you're passionate about, for passion drives innovation. Find a cause that you believe in and it'll guide you through your project. Every effort, every job
and every little detail matters. Work on it, and little by little you will grow. Don't be afraid to face challenges and trust in your ability to learn and grow. Challenge the status quo to make a difference within your community. Maximize your resources, engage your professors for guidance, and tap into your network for project support. The sky is not your limit, it's your starting point. सो ये तो वीडियो थी जो गूगल वालों की तरफ से था, ये एडवाइस थे कि आप कैसे बना सकते हो, लाइक जो अपना सोल्यूशन है वो कैसे आप कोलैबोरेट करके और कैसे गूगल की टेक्नोलॉजीज यूज़ करके बना सकते हो. जैसा कि आपको अभी पता है कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं वो लाइव हो चुके हैं गूगल सॉल्यूशन चैलेंज के, एंड आप उसको भी भर सकते हो. एंड जो उसका किक ऑफ इवेंट है ऑन द 11th of January, आप उसके लिए यहाँ पे जाके इस वाले QR कोड को स्कैन करके RSVP कर सकते हो. So for more insight on solution challenge, we have two guests with us today, आदित्य गर्ग एंड जिया मित्तल. लास्ट ईयर इन लोगों ने अपना जो सोल्यूशन था वो प्रेजेंट किया था सोल्यूशन चैलेंज में, एंड इनका जो टीम थी वो टॉप 100 में आई थी. सो वेलकम आदित्य गर्ग एंड जिया मित्तल. Hello everyone. यार तो सबसे पहले ना तुम लोग यार अपना जो एप्लीकेशन बनाया था उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे दो. Okay, I'll tell you about it. So, जैसे Abhishek told you guys that you have to choose one of the 17 sustainable goals and you have to work under that. So we chose good health and well-being, and our application was named Shayan. So it was a Flutter-based application. It was a super cool app, which basically addressed the sleep disorders. Like you know, globally there are over 50 million to 70 million people who suffer from these sleep disorders and sleep illness. So we thought of making an application which could provide a very large number of features at one platform that could cater to users need. So I'll tell you, our main focus was to provide the people the sleep they deserve. So our main motive was to provide them personalized plans, which includes exercises and as well as the diet based on the health assessment questions. And apart from that, we focus on advanced checking metrics. We also provide them different tools like Test My Bedroom, which could measure light and noise, sleep calculator, meditation timers, and audios. Okay, what you have to do is whatever you choose your project, you have to implement Google technologies to make your project more appealing. It is not compulsory, but it will make your solution look more aligned with Google's objective, right? So we used text to speech, we used Google Fit connectivity, we used Google Maps to find nearby meditation centers. There were a lot more features, but yeah, the main motive was to provide the people the sleep they deserve. या वेरी वेल. सो आदित्य, जो आपने ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज किया था, हाउ डिड यू चूज इट एंड व्हाट वर द थिंग्स यू केप्ट इन माइंड व्हाइल चूजिंग दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट?
ओके, वैसे अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो अपना माइक ऑन करके या हैंड रेज करके पूछ सकता है। पूछना है किसी को कुछ? Guys, whatever doubts you have in your mind, you can ask us. हाँ, यस आयुष पूछ ले डाउट। सर जो हम प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो भी गूगल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको यूज करना मतलब कितना इम्पोर्टेंट होता है, या फिर हम बाकी दूसरी टेक्नोलॉजीज भी यूज कर सकते हैं? हाँ सर। सर और एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि अभी यूएन के पास 17 एजेंडाज है, मतलब उनमें शॉर्ट लिस्ट कैसे करा था आप लोगों ने? ओके। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। In addition to this, आप लोग लाइक जो पिछले जितने भी अभी रिसेंट ईयर्स हैं 2020 से लेके आप टॉप 10 जो फाइनलिस्ट रहे हैं उनकी वीडियोस भी देख सकते हो कि उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या रहा है एंड मोस्टली वो किस गोल से रिलेटेड ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। इट विल ऑल्सो हेल्प यू। या सो नेक्स्ट अप, सो जो सोल्यूशन चैलेंज में अगर आप रजिस्टर करते हो तो दो सबसे बड़े जो प्रमोटिंग फैक्टर्स या इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे वो है कि फर्स्टली तो आपको 1 ईयर के लिए फ्री डोमेन्स मिलेंगी विद द एक्सटेंशन .dev .app या .page, जो कि 1 ईयर के लिए फुली फ्री होंगी। एंड सेकेंडली आपको अपना सोल्यूशन को ऑनलाइन होस्ट करने के लिए, या आप अगर चाहो तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो, और उसके लिए आपको फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं जो कि लाइक द ड्यूरेशन ऑफ सोल्यूशन चैलेंज तक एक्सपायर नहीं होते हैं। सो टाइमलाइन देख लेते हैं सोल्यूशन चैलेंज की। सो रजिस्ट्रेशन जो ओपन हुए थे सोल्यूशन चैलेंज के वो December 1 को ओपन हुए थे 2023 में, एंड जो किक ऑफ इवेंट है वो आपका January 11 को होगा, एंड सबमिशंस ओपन होंगे January 21 को। सो December 1 से लेकर January 21 तक आपका लर्निंग एंड बिल्डिंग फेज था। नेक्स्ट आपका जो सबमिशन क्लोज होंगे वो 22 Feb को होंगे, एंड मार्च में स्टार्ट होगा आपका जजिंग राउंड 1, एंड आफ्टर मार्च अप्रैल में, अर्ली अप्रैल में आपका टॉप 100 अनाउंस होंगे, जो भी टॉप 100 टीम्स होंगी गूगल सोल्यूशन चैलेंज की वो अनाउंस होंगी। देन एक मेंटरशिप फेज स्टार्ट होगा जो कि लास्ट करेगा May 5 तक, जहाँ पे आपको फिर से जो टॉप 100 टीम्स हैं सिर्फ वही सबमिट कर सकती हैं अपने प्रोजेक्ट्स को विद द हेल्प ऑफ द मेंटर्स जो उन्होंने इम्प्रूव किया अपने प्रोजेक्ट में, वो जाएगा उसमें। एंड उसके बाद लेट मेस में जो होगा अनाउंस होंगे फाइनल टॉप 10, एंड उसके बाद एक डेमो डे होता है जहाँ पे जो टॉप 10 प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको गूगल की टीम अपने यूट्यूब चैनल पे खुद से आके प्रमोट करती है, खुद आके जो विनर्स होते हैं उनके इंटरव्यूज आते हैं, एंड उसके बाद जो टॉप 3 विनर्स हैं वो लाइक अनाउंस होते हैं। तो जो टॉप 3 विनर्स अनाउंस होंगे वो June 27 को अनाउंस होंगे।
सो जो प्राइजेज हैं वो फॉर द टॉप 100 टीम्स होंगे, कस्टमाइज मेंटरशिप्स मिलेगी आपको, आपकी जो प्रोजेक्ट आप सबमिट करोगे टॉप 100 टीम्स को उस पर मेंटरशिप मिलेगी, आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को एक स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हो, आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे स्केल कर सकते हो, कैसे ब्रांडिंग होनी चाहिए आपकी, कैसे मार्केटिंग करोगे, हर चीज़ पे आपको मेंटरशिप मिलती है। देन आप जब सबमिट करोगे एंड इफ़ आप फाइनल 10 में आ गए तो आपके लिए उसके आगे आगे और बढ़ने के लिए मेंटरशिप एंड देन एक स्वैग बॉक्स जिसमें लाइक बेसिकली गूगल की टी शर्ट्स होती हैं एंड और भी ज़्यादा स्वैग्स होते हैं। एंड उसके बाद जो आपका विनिंग 3 होते हैं उनको मिलता है लाइक $3000 पर मेंबर, तो टोटल अमाउंट होगा 12,000 मेंबर्स, 12,000 डॉलर्स हो जाएगा पर टीम। और जो आपके टॉप 10 होंगे उनको $1,000 पर मेंबर मिलता है, और तो टोटल अमाउंट आ जाएगा $4,000 पर टीम। सबमिशन क्राइटेरिया आपका लाइक तो उसमें अलग अलग फेजेस हैं। पहले आप प्रोजेक्ट सेटअप करोगे जिसमें आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट और अलग अलग गोल्स डिसाइड करते हो किस पे बनाना है आपको। देन आप इम्प्लीमेंटेशन पे आते हो कि आपको प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या आर्किटेक्चर है, क्या हाई लेवल कंपोनेंट्स है और हर कंपोनेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसे। देन फीडबैक, टेस्टिंग और आइट्रेशन। तो एक बार आपने इम्प्लीमेंट कर लिया अपना प्रोडक्ट, उसके बाद आप कुछ जो आपके पोटेंशियल मार्केट है या पोटेंशियल कस्टमर्स है उन पे पिच करोगे वो, और उसके बाद उस पर फीडबैक लोगे एंड देन उस फीडबैक पे आइट्रेट करोगे। आइट्रेट करने का मतलब हुआ कि लाइक जो आपको फीडबैक मिला उस फीडबैक पे आप क्या काम कर रहे हो, उस फीडबैक को कितने अच्छे से लेके अपने प्रोडक्ट में क्या चेंजेस कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स। देन उसके बाद आपने सबमिट किया एंड जो वो सबमिट किया तो देन आपका सक्सेसफुली सबमिशन के बाद जो नेक्स्ट आता है वो जो स्केलेबिलिटी वाला फैक्टर है वो लाइक मोस्टली आफ्टर टॉप 100 देखा जाता है। बिफोर टॉप 100 तो मोस्टली आपका आइडिया, देन आपका इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन देखा जाता है। सो यहाँ पे लाइक मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जिया और आदिया आपसे। हाउ मच रिसर्च डिड यू पुट इन बिफोर कमिंग टू दिस सोल्यूशन? Baki, like it's whatever project you choose, you have to read articles about it. You like जैसे हमने if we choose ना sleep related issues को हमने tackle करना है तो we read articles about what sleep like what are the major disorders like जो हमें पता है और उसके हिसाब से हम कैसे पर्सनलाइज़ प्लान्स दे सकते हैं और लोगों को क्या दिक्कतें आती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने ऐप में क्या टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्टडी आपको उस रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह से इंटरनेट से वो आपको करनी पड़ेगी एंड अदर देन दैट गूगल फॉर्म्स इज़ बेस्ट। आप जितना उसको अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से फिल करवा सकते हो दैट इज़ बेस्ट। आई रिमेंबर लाइक नॉर्मली इट हैपन्स कि कभी-कभी गूगल फॉर्म्स इतने सीरियसली नहीं लिए जाते हैं। तो आई रिमेंबर आई मेड एवरी फैमिली मेंबर ऑफ माइन सिट विद मी एंड आई मेड देम फिल दिस गूगल फॉर्म वेरी सीरियसली क्योंकि आपको जितने ट्रू रिस्पॉन्सेज मिलेंगे आप उतना अपने प्रोजेक्ट की तरफ काम कर सकते हो। और कोशिश करना कि अगर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हो तो आपका जो गूगल फॉर्म हो वो ज़्यादा लंबा ना हो और टू द पॉइंट हो, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ चाहिए सिर्फ वही उसमें हो। हाँ पूछ लो रितेश। रितेश हेलो। मैं ये कि जैसे टीम बनानी होती तो हाउ मेनी मेंबर्स शुड बी इन अ टीम एंड आपके टीम में कितने मेंबर्स थे? We had 4 members. There was Aditya, Prateek, Sumit and me. And I was the UI UX designer of the team. आप 4 से ज़्यादा members नहीं रख सकते हो। Okay.
पर एक चीज़ थी कि लाइक आपने कोई स्पेशल टूल्स यूज़ करे थे रिसर्च के लिए या कोई स्पेशल चीट कोड्स या ट्रिक्स आपने कोई यूज़ की थी? Yeah, like if you can't sleep, if you got a breakup with a girl or a boy, and that could be the issue, you're not having proper sleep at night. We even asked that question. ओके। एंड जैसे अगर आप मान लो आप किसी ऐसी डोमेन में जाते हो जिसमें पहले से ही बहुत सारा कंपटीशन है, तो आप ये कैसे डिटरमाइन करोगे कि आपका जो ऐप है वो ज़्यादा डिफरेंशिएटिंग है? लाइक जैसे मैं अगर बोलूँ तो स्लीप वाले इसमें लाइक आई थिंक काफ़ी सारे पोमोडोरो ऐप्स और जो डिजिटल वेलबींग वाले ऐप लॉकर्स आते हैं वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं कि आपको सोशल मीडिया से हटा देते हैं। तो लाइक आपके ऐप का एक यूएसपी क्या था और कितना इम्पोर्टेंट होता है यूएसपी होने का? मतलब And like as if you are saying na, there are already a lot of apps present like Pomodoro जो ये functionalities provide करते हैं. But I would say like our app was like if you see at other apps, they only provide 2 or 3 functionalities at most. So we made a platform that could provide more than 2 or 3. Like if you have seen our video on YouTube, our app provides like a number of about 13 to 14, even more than that functionalities. So you have to think about the points which could make your app unique. ओके। सो जिया, सिंस आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर थे इस ऐप में एंड आपने काफ़ी रिसर्च करी होगी यूएक्स को इम्प्रूव करने के लिए, सो हाउ मच फोकस शुड वन पुट ऑन प्रेजेंटेशन? If I talk about the UI UX, उसकी like अलग अलग लेवल पे इम्पोर्टेंस होती है बिकॉज आपका there are points for your solution for especially for the design. Like जजेस नोट करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना यूज़र फ्रेंडली है एंड आप कितना इजीली उसको यूज़ कर सकते हो. लाइक इफ़ यू आर गोना target a large audience, it should be like it should be designed according to the audience you are going to target. So I would say ek to ki if you are making a team, like I would say take a person who could majorly focus on the UI UX part because it is very important. And I would say implement a consistent theme throughout your project. It really has a good impression. Baki, if you are having a person with you who has a knowledge about UI UX, it would be very easy. And it's like ki, whatever application you are building, whatever your major points are, like our major points was to provide personalized plans and sleep score. So we put them on home screen. So whatever major points you have, just you put them there where it is easily accessible. जो आपको पता है कि ये फीचर्स फ्रिक्वेंटली यूजर रोज यूज करने वाला है, मेक देम इजीली विजिबल. जो आपको पता है दैट दीज आर द फीचर्स दैट आर नॉट गोना बी यूज्ड फ्रिक्वेंटली, यू कैन keep them in separate tabs. That's all about the UX. And if I talk about the submission part, your documentation is very important. The demo video you are gonna make, that is very important. It should be not longer than 2 minutes and it should be very concise and very clear.
and it should not include any technology. All the technology part you are gonna write in the documentation, and you're gonna have to explain it very clearly in the documentation. बाकी आप जब when you read the guidelines on the side, it's very well written over there how you have to make the video, how you have to show that how your application is working, because it is the only way you are going to communicate with the judges. So make it to the point, concise and clear. ओके, अभी यहाँ पे किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले. Excuse me, sir. Yep. सर एक्चुअली मैंने 10 मिनट्स लेट ज्वाइन किया था, तो कुछ पोर्शन मेरा रह गया, तो उसको भी कवर रिकॉर्डिंग वगैरह है इसकी अवेलेबल? या रिकॉर्डिंग आपको लाइक मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे. थैंक यू सर. किसी को और कुछ पूछना हो तो. सर एक और क्वेश्चन था कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जब आपने आइडेंटिफाई करी थी, तब आप रिसर्च किस तरीके से चल रही थी? मतलब कि एक प्रॉब्लम को पकड़ने से पहले का भी एक फेज होता है जब हम देखते हैं कि ओके हमारे पास ये सेट ऑफ इश्यूज हैं, तो इनके अराउंड हम लोग को सोल्यूशन कैसे क्रिएट करना होगा. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने कैसे पकड़ी थी कि ओके हमें इस पे वर्क करना है? आइडेंटिफाई कैसे किया था? बेसिकली लाइक इसमें ऐसा ही होगा कि जो तुम्हें तुम्हारे आइडिया को, तुम्हारी टीम को और तुम्हारे जो थॉट प्रोसेस है उसको ज़्यादा सूट करता है, तो उस आइडिया पे ज़्यादा फोकस करो. तुम जो चीज़ को तुम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो उस पे ज़्यादा फोकस करो. जो चीज़ तुम्हें इंटरेस्ट करती है उस पे फोकस करो, तो लाइक इजी रहेगा तुम्हारे लिए चॉइस करना भी. एंड ऑब्वियस सी बात है उसका जो इम्पैक्ट है वो भी आपको देखना पड़ेगा. यस तान्या. सर इज इट नेसेसरी कि हमें ऐप ही बनाना है? लाइक हम वेबसाइट नहीं बना सकते? No, it's not necessary. You can go for website also. ओके. एंड मैम मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए एक टीम में? लाइक जो आपका टीम का कॉम्पोजिशन है वो 1 to 4 हो सकता है. आप इंडिविजुअली भी सबमिट कर सकते हो. मैक्सिमम मेंबर्स 4 है. ओके. ओके सर. वेबसाइट्स का ऐसा रहता है कि लाइक उसके लिए आपको एक्सेस करने के लिए एक क्या बोलते हैं, एक बड़ा डिवाइस चाहिए, एंड फोन इजीली अवेलेबल होते हैं, तो ऐप्स ज़्यादा प्रेफर्ड होते हैं ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस में. ओके सर. या सो नेक्स्ट हम आते हैं जजिंग क्राइटेरिया पे. तो जजिंग क्राइटेरिया आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा. एक आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या इम्पैक्ट दे रहा है, एंड आपका दूसरा जो आपका प्रोजेक्ट है वो कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहा है. सो इम्पैक्ट में फर्स्टली आपका आ गया कि आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ किया है वो काफ़ी क्लियर है, और जो गोल्स और जो टारगेट्स यूएन ने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और टारगेट सेट करे हैं वो उसके अंडर लाई करता है. तो देन आपकी टेक्नोलॉजीज में आ जाते हैं. तो आपका आर्किटेक्चर कैसा था, और आप उसमें आपके जो हाई लेवल कंपोनेंट्स थे वो क्या थे, वो हर कंपोनेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो. देन आपने जो प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन की है उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं. देन आपने कौन सी गूगल टेक्नोलॉजीज यूज़ की और क्यों यूज़ करी वो सब बताना है. देन आपके जितने भी टेक्निकल कंपोनेंट्स हैं
एंड जो आपका कोड बेस है वो आपने कितनी बार उसको टेस्ट किया, कितनी बार आइटरेट किया उस पे, कितना लोगों से फीडबैक लिया, लोगों से इंटरैक्ट किया अपने सोल्यूशन के लिए कि नहीं किया, एंड देन आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसी है, आपका जो वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन है वो कैसा है। सो एंड बाकी जो आपके ओवरऑल फीचर्स हैं उस पे भी काफ़ी डिपेंड करता है, एंड जो आपका सोल्यूशन है वो एग्जैक्टली लाइक एक कंप्लीट सोल्यूशन उस प्रॉब्लम के लिए है कि नहीं, एंड आपने अगर कुछ लाइक इनकम्प्लीट छोड़ा है या नहीं, मतलब अगर कोई आपकी ऐप में कोई फीचर इनकम्प्लीट रह गया तो लाइक वो मेजर एस्पेक्ट हो सकता है कि लाइक आपका सोल्यूशन ना सेलेक्ट हो। तो आप मेक श्योर करो कि जो आपका सोल्यूशन है वो इंटैक्ट हो एंड कंप्लीट सोल्यूशन आप प्रेजेंट करो सोल्यूशन चैलेंज में। देन व्हाट मेक्स अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सो आपको पता होना चाहिए कि उसमें सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज़ द अर्जेंसी, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। देन जो सिंपल टर्म्स पॉसिबल हों, आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एज सिंपल एज बहुत ही सिंपल टर्म्स में चाहो तो ब्रेक करके देखो, एंड देन उसको अलग अलग करके देखो कि आप छोटी छोटी कितनी प्रॉब्लम्स उसके अंदर उसमें लाइक कवर कर सकते हो। देन आपका जो प्रॉब्लम का साइज और स्कोप है वो काफ़ी मैग्नीट्यूड ऑफ पीपल को हेल्प करना चाहिए। देन आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जब आप सबमिट करते हो तो कुछ गाइडलाइंस हैं जो गूगल ने दी हैं, वो आप लाइक इसको रीड कर लेना, एंड जो और रिसोर्सेज हम देंगे उसको भी रीड कर लेना। सो ये तो रहेंगे रिसोर्सेज, एंड लाइक ये पीपीटी मैं आपको शेयर करवा दूंगा। सो तो सबमिशन की बात करते हैं, तो लाइक आदि और जिया, व्हाट वर द की फैक्टर्स यू केप्ट इन माइंड व्हाइल सबमिटिंग? while submitting, एक तो लाइक जो आपका गूगल फॉर्म होगा, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, एक तो ये ध्यान रखना कि आप जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं दैट यू हैव टू एक्सप्लेन वेरी क्लियरली, और वो फॉर्म आपका बार बार रिव्यू हो, ऑल द टीम मेंबर्स शुड रिव्यू इट अगेन एंड अगेन, ताकि आपको पता चल सके इफ़ यू हैव एनी मिस्टेक्स और द थिंग्स यू हैव टू ऐड। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जो वीडियो होनी चाहिए वो आपकी जो डेमो वीडियो होनी चाहिए, डू नॉट यूज़ स्क्रीनशॉट्स इन दैट। आपको प्रोटोटाइप दिखाना होता है तो आपको अपनी ऐप की वर्किंग दिखानी होती है। एंड सेकेंड थिंग कि इफ़ यू आर स्पीकिंग बिहाइंड, यू आर एक्सप्लेनिंग योर फंक्शनैलिटीज, डोंट यूज़ लाउड म्यूजिक एंड ऑल। लाइक बिल्कुल बैकग्राउंड वॉइस ऐसी रखना कि आपकी जो वॉइस हो वो ना दब जाए, ठीक है। एंड बस बाकी यही था कि आप हर एक ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम गूगल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करो ताकि आप उस फॉर्म में लिख पाओ, क्योंकि उसके जैसे आदि ने बोला पॉइंट्स होते हैं। दैट्स ऑल। आदि आपको इसमें कुछ ऐड करना? ओके, सबमिशन से रिलेटेड किसी को कोई डाउट हो तो लाइक अभी पूछ लो। सब प्रोजेक्ट रिलेटेड एक डाउट है। क्या? जो भी हम ऐप बना रहे हैं वो मैंडेटरी है कि वो SaaS बेस्ड एप्लीकेशन हो, या फिर हम कोई प्रोडक्ट बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं? ओके। एंड एक चीज़ और, इट्स लाइक if your deadline is like suppose 31st March, right? So don't be like that you have enough time, we will do it a day before or we will do it on the 31st March. Believe me, making video takes a lot of time, so start making it a week before, क्योंकि आपको फिर उसमें बाद में एडिटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। Any other questions? ओके, सो बेसिकली तो हम जो गूगल सोल्यूशन चैलेंज है वो हम मोस्टली तो लाइक कम्युनिटी हेल्प और डूइंग गुड फॉर द वर्ल्ड और इसके लिए करते हैं।
बट जो अंडरलाइंग मोटिव होता है कई बार हमारा जो होता है वो लाइक अपना पर्सनल करियर में डेवलपमेंट भी होता है, लाइक एक शोकेस करने के लिए भी होता है कि हमने एक इतनी बड़ी हैकाथॉन जीती या टॉप 100 में आए या टॉप 10 में आए। सो आदि और जिया, लाइक आप टॉप 100 में आए, व्हाट डज दिस इम्पैक्ट पुट एन इम्पैक्ट अपॉन योर रेज्यूमे? हाउ मच इम्पैक्ट डज इट पुट? Like same thing, it's like if you write in your resume that you are a top 100 finalist, it would definitely give you recognition. And I remember in my recent interview for a company in round 2, it was like this project was the conversation starter. Like they started with this project only, and we had a full discussion, and they asked me what role did I play, what contributions I made. It also shows that how well you can incorporate in a team and how well you can work. So of course it will impact your resume very well. लाइक और कोई किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो अभी इन लोग से। Anyone? Okay, how many of you already made a team and registered for the Google Solution Challenge? जस्ट हैंड रेज कर दो। No one? Or how many of you are planning to participate? जो लोग प्लान कर रहे हो पार्टिसिपेट करने का, एटलीस्ट रजिस्टर कर दो, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं वो लाइव हो चुके हैं 1 दिसंबर से, तो ऑलमोस्ट एक मंथ से भी ऊपर हो गया है। रजिस्टर तो कर दो कम से कम। रजिस्टर करने के लिए लाइक जो ईमेल है वो आपको मिल जाएगी। गूगल सॉल्यूशन चैलेंज आप सर्च करोगे, जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक करिए। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, एल्स हम सेशन खत्म कर देते हैं यहाँ पे। हाँ यस शमीर, वो कंडीशन रहती है कि लाइक आपका जो एक मेंबर होना चाहिए वो मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द जीडीएससी कम्युनिटी। बट जैसे कि लाइक आप ज्वाइन करते हो हमारा जो जीडीएससी इवेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपने आप को एज अ मेंबर रजिस्टर करते हो अगर हमारे ही क्लब से, तो आप बन जाते हो जीडीएससी मेंबर। You are not a core member, but yeah, you are a member of the GDSC community, so you can participate in Google Solution Challenge. किसी और को कोई डाउट है? कुछ भी पूछना होता है यार पूछ लो, इतना टाइम से दोनों नहीं मिलेंगे फिर दोबारा।